Hello, a very good evening to everyone. I'm Tanvi, today's host for you. Welcome to the Maker Story 2.0. This event is an initiative taken by ISEC in Ahmedabad and AMA to, I'm so sorry, in which from in which changers and leaders come to advise us and give us a very good program. We have leaders from different fields who have came here and they share their stories, who have built or created their own legacy which is admired by everyone, but behind the scenes we don't know what struggles they have been through and have made the person they are today. Just like that, we have today's our speaker. We are joined by Mr. Raj Shah sir, co-founder of We Here, who turned a classroom idea into a 2 crore Shark Tank deal. This session dives into his journey of innovation, impact, and entrepreneurial grit. Hosted at the Ahmedabad Management Association, this is a space for inspiration and learning. About ISEC, I wonder you guys not would have no idea about ISEC. ISEC is the world's largest youth-run organization who empower young people through impactful leadership experiences. We develop the leaders of tomorrow by connecting them with opportunities to create change. We are from 75 plus years. We have 40,000 plus active members with us. About ISEC in Ahmedabad, it was established in 1983 and it was initially started by IIM Ahmedabad. We empower young people through cross-culture exchange and leadership development. Basically, exchanges are we bring people from internationally, like interns, to work here in the country, to work here in the companies, and we also send people, students and youth from here to international countries to give them an exchange experience. So may we please have you on stage. Please join me in welcoming Mr. Raj Shah, sir, the co-founder of We Hear, an initiative company transforming hearing technology through smart, non-invasive solutions. With a strong background in engineering and a passion for social impact, Raj sir has led We Hear in developing cutting-edge bone conduction devices that are making hearing accessible for all. His work is a powerful example of how technology and empathy can come together to create lasting change. Let's welcome him. Everyone understands Gujarati, Hindi, English, what's so mixed language में मजा આવશે. Okay. થોડુંક ફોર્માલિટી સાઈડમાં મૂકી દઉં, આપણે એકદમ પ્રોપર દેશી ઓન્ટરપ્રનર સાઈડ. સો આઈ એમ અ સિરિયલ કો ફાઉન્ડર એન્ડ દિશિલની સાથે જસ્ટ વાત કરીએ તો જસ્ટ ફ્યુ મિનિટ્સ બેક દેટ see what you see is end result, that okay, as a co-founder of We Here, Shark Tank deal, it's an end result, but more interesting part is the journey, what actually went through while getting it. And probably that was not even the final milestone. वो भी एक journey का part था. So we all are living our lives, we are enjoying every day. But मेरा यहाँ पे आज interaction से objective ये है that you could learn something for yourself and probably implement a few critical things. और जो mistakes मैंने नहीं की वो आप या जो मैंने की उसको आप अवॉइड करके आगे जा सकते हो, और जो चीज़ों पे मैंने नहीं किया कि यार यह मुझे समझ में आ गया, मैं वो समझ भी आपको देना चाहता हूँ. सो वुड जस्ट लाइक टू नो द ऑडियंस, जैसे
हाउ मैनी ऑफ यू आर परसुइंग ऑन्टरप्रनरशिप? अगर कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप आइडिया पे वर्क कर रहा है, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? ओके, दैट्स ऑसम. एंड आप बाकी के जो है, जस्ट यू वांटेड टू नो द जर्नी और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव टू बी हियर? नो द जर्नी. ओके. सो आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड उसके बाद मैंने MBA किया. सो आई डिड माई MBA इन ऑपरेशंस एंड दैट आई डिड फ्रॉम नरसिंह मुंजी, मुंबई. तो मेरा पूरा एजुकेशन जो हुआ, सेटिंग अप द बैकग्राउंड वॉज इन मुंबई. मैंने कभी खेत वेत देखा नहीं था. मतलब मेरे हिसाब से आलू बिग बाज़ार से आता था और दूध जो है अमूल का ही आता था. सो आई वॉज रेस्ड इन मुंबई. And 2013 I was campus placed in Reliance. So अच्छी नौकरी मिल गई and I joined Reliance Industries. So मैं नवी मुंबई में वहाँ पे काम कर रहा था. So 2013 having a very good salary package. But एक चीज़ मुझे दिमाग में थोड़ी सी खट गई. वो ये था कि my family, lot of people had diabetes and I saw that जितने भी लोग कॉरपोरेट कल्चर में हैं, दैट टाइम आई वॉज 23 व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2013. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई सॉ माई सीनियर्स, कोई ना कोई दवाई लेता था. या तो 35 साल के लोग, या तो कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा है, कोई डायबिटीज़ की ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की ले रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है उसके लिए दवाई ले रहा है. सो वी हैव सीइंग दैट इन अ कॉरपोरेट हसल लॉट ऑफ पीपल यूज टू टेक मेडिसिन. क्योंकि आपको परफॉर्म करना है तो आप अपने शरीर को भूल जाते हो और शरीर को भूलने के बाद दवाइयों पे चले जाते हो. नाउ आवर फैमिली एज ए लीनिएज ऑफ डायबिटीज़, और उसके हिसाब से मैंने सोच लिया कि यार इसके ऊपर अगर कुछ काम करता हूँ तो अच्छा होगा. स्टार्टअप फॉर मी दैट टाइम व्हेन आई क्विट माई जॉब इन 2015 वॉज टू गो अवे फ्रॉम द कॉरपोरेट कल्चर. मेरा स्टार्टअप का रीज़न कुछ अलग था, राइट? But from the experience that I have had, I would say that's not the right reason to do it. मतलब मैं अपने आपको एक फेलियर, so that is a way कि मैंने बहुत जल्दी या बिना प्रॉपर प्लानिंग किए मैं फर्स्ट स्टार्टअप स्टोरी में चला गया. तो मैंने सबसे पहले एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जहाँ पे मैंने फोकस किया स्टीविया फार्मिंग. स्टीविया का एक ऐसा पौधा होता है जिसके पत्ते 30 से 40 गुना मीठे होते हैं शुगर से, एंड इट इज़ गुड फॉर डायबिटिक्स. सो बेसिकली मेरा प्रेजम्पशन इतना था कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है. फिर मैंने गूगल का डेटा लिया कि भाई इंडिया में तो 30% लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो मार्केट साइज़ तो करोड़ों का है. जो सारे हम कॉलेज में इसी तरीके से बिजनेस प्लान बनाते हैं, इसी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं कि गूगल पे गए, मार्केट साइज़ इतना है, हम इतना प्रोडक्ट बना देंगे, उसमें से सिर्फ 1% ने ले लिया ना तो हम तो भैया पर करोड़पति बन गए. मतलब हमारा धंधा एकदम मस्त है, करेक्ट? तो वो सोच के मैंने सोचा कि चलो यार इस पे स्टीविया पे काम करते हैं. अब फिर सोचा कि खेती कर लेते हैं, कि गूगल पे सर्च किया कि स्टीविया फार्मिंग, तो ये आ गया कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर. आज भी डालोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा कि 1 एकड़ में से इतनी कमाई हो जाएगी. तो फिर उसको एक्सेल में मल्टीप्लाई कर दिया. हमको सबको भगवान ने एक्सेल दे दिया है, बराबर है. तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं भी अगर बिजनेस शुरू करना है तो हमारा बेंचमार्क ये हो जाता है कि ठीक है 1 एकड़ में इतना पौधा लगाएंगे, इतने लोगों को लगा देंगे, तो 1 एकड़ में से इतना पैसा मिलेगा, तो 100 एकड़ में से कितना मिलेगा? सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 ही तो करना है, करेक्ट? तो आप 2 साल में आराम से करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर लोगे स्टीविया की फार्मिंग से. तो वो जनरली क्लासरूम क्या बोलते हैं बिजनेस आइडियाज़ की जो मेथोडोलॉजी है उसको मैंने जनरली फॉलो किया था. एंड नॉट बिकॉज आई वांटेड टू, प्रॉबेबली उस समय वो कोई गाइडेंस हुआ नहीं करता था कि स्टार्टअप कैसे करना है, क्या नहीं करना है. क्या नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आज आपको क्या नहीं करना है उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करूँगा, रादर देन क्या करना है वो तो आप खुद फिगर आउट कर लोगे. तो वहाँ पे बैठ के एक्सेल पर बना लिया कि हम लोग है ना 2 साल में 100 एकड़ की फार्मिंग कर लेंगे और विद इन 2 years आई विल बी अर्निंग 5 times माई कॉर्पोरेट सैलरी एंड लाइफ विल बी झिंगा लगा. बराबर. तो वो एक्चुअली में नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जब फार्मिंग करते हो तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं कि लेबर आएगा नहीं आएगा. हम तो ऑफिस में जब रिलायंस में काम करते थे तो हर एक एम्प्लॉय 8:30 बजे आ जाता था एंड एवरीवन विल गो बिकॉज दे आर पेड बाय द कंपनी. बट अभी आप अगर कोई स्टार्टअप करो, कोई बिजनेस करो, हायरिंग द टीम, एग्जीक्यूशन, आप 2 लोगों से काम कराओ अलग चीज़ है, आप 50 लोगों से काम कराओ, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, हैंडलिंग, वो पूरा अलग चीज़ है. सो व्हाट लुक्स वेरी इजी ऑन एक्सेल इज़ नॉट द रियलिटी.
क्योंकि आप एक्सेल में मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दोगे और बोल दोगे इन्वेस्टर्स को कि देखो सर हम इतना धंधा कर सकते हैं, ये मेरा मार्केट वैल्यूएशन है और इस हिसाब से आप मेरे को फंडिंग दे दो। तो सोचना बहुत अच्छा है, रात को बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं कि कल हम ये कर देंगे, परसों ये कर देंगे, बट उस सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन चाहिए, और एग्जीक्यूशन अकेले नहीं किया जा सकता। प्लस उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम ये सोचते हैं कि कल यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ये भी हो सकता है कि फ़्लाइट में जाना था, फ़्लाइट डिले हो गई, करेक्ट, या तो फ्लाइट सही टाइम पे थी बट यहाँ पे कुछ रिवर फ्रंट पे कोई प्रोसेशन चल रहा है, कुछ हो रहा है, रास्ता बंद हो गया। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, हम तो बिना वेरिएबल्स को अकाउंट किए हुए अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, करेक्ट। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी भी स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये इसको फेल होने के कौन से 100 चांसेस हैं। कई बार हम लोग उसको इतना अपने से जोड़ लेते हैं कि ये तो फेल ही नहीं होगा क्योंकि ये मेरा आइडिया है, और कोई अगर आपको इसके बारे में बताता भी ना 2 नेगेटिव, यार तेरे को समझ में नहीं आएगा, वे सिर्फ मेरे को ही समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर एनीवन हु इज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इज बी योर ओन डेविल्स एडवोकेट, कि ये 100 तरीके से फेल कैसे होगा। तो वो मैंने नहीं सोचा था। एंड शुरुआत के 2015, 16, 17 3 years which were initial critical part of my entrepreneurship journey, I miserably failed, करेक्ट। मैंने काफ़ी पैसा जो कमाया था वो सारा बर्न कर दिया, बट वो मैंने सीखा इतने सारे लॉस के बाद। नाउ फिर एग्रीकल्चर में ही वापस आगे एक जर्नी शुरू करने की कोशिश की कि चलो स्टीविया तो फेलियर हुआ, तो वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाई की थी, तो उसमें ये आया था कि हम लोग बात कर रहे थे कि काइजन, जापानीज कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग फेलियर कॉजेज। तो मैंने एग्रीकल्चर में वो फेलियर देखा कि स्टीविया का एग्रीकल्चर फेल क्यों हुआ। अभी इन सीजन बारिश हो जाती, इस बार अहमदाबाद में बारिश शुरू हो गई मई से। आइडियली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश शुरू होगी जून जुलाई में, तो अब मई से ही बारिश शुरू हो गई, अब तक चलते ही जा रहा है। तो आप किसी क्रॉप का ऐसा सोचोगे कि किसी ने कपास या कॉटन किया हुआ है और जस्ट हार्वेस्ट करने का टाइम है और बारिश आ गया, तो पूरा उसका कॉटन का लॉस हो जाएगा। जल्दी बारिश होना भी रिस्क है, कम बारिश होना भी रिस्क है। अगर इसमें से कितने लोगों का फार्मिंग बैकग्राउंड है, कोई फार्मिंग फैमिली से, ओके। तो खेतर होए तो खाली क्रॉप नहीं, क्रॉप के साथ एनिमल अटैक, कि अगर आप देखोगे तो अगर आपने मक्के की खेती की हुई है, गांव में जाओगे तो ये पता चलेगा नीलगाय करके आएगी और वो पूरा दौड़ के जाएंगी, तो पूरा खेत खत्म हो जाएगा। अब ये गूगल नहीं बताता, आप गूगल में रिस्क एनालिसिस के 50 क्वेश्चन डाल दोगे, वो आपको एक्चुअल फील्ड का रिस्क नहीं बताएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीधा अगेन एक्सेल और गूगल के फोरकास्ट के बेसिस पे अगर स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट करके आगे ले जाओगे और ऑन फील्ड बाकी के वेरिएबल्स को अकाउंट नहीं करोगे, तो भी बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपने सब रिस्क को उसमें नहीं इन्वॉल्व किया। तो दूसरा खेती में रिस्क था एनिमल रिस्क, कि अगर आप कोई भी खेती करते हो तो एनिमल को कैसे दूर रखा जाए, क्योंकि एक तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, करेक्ट। थर्ड मार्केट रिस्क होता है, जो सबसे है कि हमने पूरा रेडी तो कर दिया, बट क्या हमको परफेक्ट रेट मिलेगा, भाव मिलेगा कि नहीं, कि सारी मेहनत कर ली और एंड में अगर हम प्रोड्यूस को सेल करने जा रहे हैं तो विल आई गेट अ मार्केट और नॉट। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को डाला। अब मैंने उल्टा शुरू किया। पहले मैंने कैसे अप्रोच किया था कि क्योंकि डायबिटीज़ है, इतना बड़ा मार्केट है और कोई किसी ने स्टीविया किया हुआ है किसी दुनिया में, तो हम वैसा इंडिया में कर सकते हैं, करेक्ट। वो अप्रोच से मैंने स्टार्टअप शुरू किया। अब मैंने पूरा अपना क्या करना चाहिए का डेफिनेशन उल्टा कर दिया कि ये सारे प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम में से कौन से प्लांट का एग्रीकल्चर करूँ, मुझे एग्रीकल्चर में करना था। तो मैंने फिर वहाँ से रिसर्च शुरू किया कि यार क्लाइमेटिक रिस्क के सिवाय कौन सा क्रॉप हो सकता है, तो कैक्टस। ये थॉर है, वो ऐसा प्लांट है जिसको 5 साल पानी नहीं मिलेगा ना तो सूख तो जाएगा, बट जैसे थोड़ा भी बारिश मिलेगा वो फिर रुक के बाहर आ जाएगा, मतलब उसको बारिश से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उसमें इतने कांटे होते हैं कि एनिमल रिस्क 0 है। तीसरा कि उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खाद नहीं डालना। जैसे आज कोई भी एग्रीकल्चर करते हो, तो हम लोग स्टीविया का एग्रीकल्चर करते थे, तो इतना न्यूट्रिशन देना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करता था। एंड आज लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा जाना था, तो उस प्रॉब्लम को भी मैंने देखा कि ये तो ऑर्गेनिकली ग्रो हो सकता है।
फोर्थ पॉइंट था कि मार्केट, कैक्टस के बहुत सारे वैरायटी होते हैं कि आपने एलोवेरा देखा तो वो भी कैक्टस है, उसमें से जेल बन सकता है। दूसरा आपने कैक्टस देखा होगा एकदम पतला लंबा सा होता है, कई बार हाईवेज के साइड में देखा। और मैंने ये राजकोट के आसपास में देखा, एक हाथे हथौर करके होता है जिसको हम फिंडला बोलते हैं। तो ये वैरायटी का कैक्टस है, उसका फ्रूट था जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, मुझे समझ में आया। वो कब समझ में आया कि मैं स्टीविया के लिए एक स्टॉल लगाया था सात्विक के फूड फेस्टिवल में, और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे फिंडला का जूस का बॉटल बेच रहे थे। तो वहाँ पे मेरा टिक हुआ कि भाई देखो इसका मार्केट वैल्यू है, इसमें क्लाइमेटिक रिस्क नहीं है, इसमें एनिमल रिस्क नहीं है, इसमें फर्टिगेशन का रिक्वायरमेंट कम है। तो अगर इस क्रॉप को अच्छे से स्केल किया जाएगा तो हम इंडिया में फार्मर्स इनकम को 4x या 5x कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम रिस्क और रिटर्न बेटर हो पाएगा। अब वहाँ तक तो आ गए, पर फिंडला का जूस पीता कौन है? किसी को पता ही नहीं है कि कैक्टस जूस क्या है, तो उसका अवेयरनेस करना पड़ेगा और उसको मेडिकल साइंस में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग अगर किसी भी चीज़ को करना है, तो मैं आपको बोलूँ कि ये जूस पीने से आपका ब्लड बढ़ जाएगा, तो यू विल नॉट बी रियली वेरी इजी टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि अगर कोई कैंसर पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमन है, वो उसमें रिस्क नहीं लेगा। मैंने बोला इसलिए कोई सुन थोड़ी लेगा। तो उसके अंदर फिर रिसर्च का टाइम जाता है कि आप उस चीज़ को एस्टेब्लिश करो कि उस प्रोडक्ट की एफिकेसी या उस चीज़ की प्रोडक्ट का आप एक अच्छा वैल्यू निकाल सको। तो मैंने वहाँ पे क्लिनिकल साइंस के लिए सोचा कि भाई मैं इसको कैसे प्रूव करूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। तो वो मैंने जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के साथ किया। तो उस टाइम पे अगेन पैसा तो था नहीं मेरे पास, अगर मैं खुद क्लिनिकल रिसर्च कराने जाऊँ तो आज क्लिनिकल रिसर्च इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट टुडे बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, अगर आप LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जाते हो तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको क्लिनिकल रिसर्च में वो सपोर्ट करते हैं। सो नाउ ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारे यहाँ पे ना इंडिया में आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट कुछ लोग उसको चूरन बेचने में लग जाते हैं। अगर आप में से किसी को कोई भी मेडिकल फील्ड में या कोई भी कॉस्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट में जाने की इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप उसको साइंटिफिकली अप्रोच कीजिए। आप 5 लोगों को समझा सकते हो कि ये तेल डालने से बाल नहीं गिरेगा, बट अगर आपको 5 लाख कस्टमर को बेचना है तो कौन आपको सुनेगा? करेक्ट। हर कोई राजशाह को नहीं जानेगा, हर कोई किसी दोस्त को नहीं जानेगा। आप 500 1000 लोगों को 1 to 1 समझा पाओगे और वो आपके ट्रस्ट पे ले लेंगे। बट अगर 5 लाख लोगों को हर महीने बेचना है तो कस्टमर क्या करता है? आप भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट देखते हो, उसके पीछे ये देखते हो कि इसका क्लिनिकल साइंस क्या है। तो हमें उस एंगल से भी मार्केट को सोचना पड़े कि जस्ट ऐसा नहीं कि हमने 5 लोगों को बता दिया, 5 लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ गया तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक जाएगा। उसको हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विथ कैक्टस बिजनेस, बेसिकली कैक्टस जूस बिजनेस। एंड वो 2015 से 17 जब मेरा स्टीविया का फेलियर हुआ, उसके बाद वी पिक्ड अप ऑन द कैक्टस साइड एंड टचवुड वी आर एबल टू सर्व। मतलब हम साल के 1 लाख प्लस पेशेंट्स को हर साल ये जूस पहुंचाते हैं। एंड बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं जिनका हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए दिस इज़ रियली फैंटास्टिक एंड अमेजिंग। तो ये मेरी जर्नी का सबसे फर्स्ट स्टेप था कि आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐसे समझिए कि इज़ इट सॉल्वेबल, इज़ इट एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी चीज़ को लग मत जाओ कि यार ये तो ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख गया और हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग में जाइए एंड कैन यू क्रिएट वैल्यू। अब मैं उसके बाद सेकंड थॉट पे आऊँगा। जब कैक्टस का काम शुरू किया तो बहुत सारे गांव में लोग कैक्टस का जूस 100 से 200 रुपये लीटर बना के बेच रहे थे। राजकोट से अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पे लोकली वो लोग प्लांट में से फ्रूट का पल्प बनाते हैं और बेच देते हैं। वहाँ पे वो 200 रुपये में लीटर बना रहा था और हम लोग शायद आज मार्केट में वी सेल एट 400 रुपीज़, अराउंड 500 रुपीज़ पर लीटर, 2.5 टाइम्स। तो एम आई प्रॉफिटरिंग? द आंसर इज़ नो। क्योंकि मैंने वो पैसा लगाया R&D, अच्छा पैकेजिंग और साथ ही साथ में क्वालिटी कॉन्शियस को आगे ले जाना और टीम बिल्डिंग में। अब वो राजकोट वाले क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे थे? क्योंकि वो तो घर से चला रहे थे, वो अपना कॉस्ट तो गिन ही नहीं रहे थे। 90% फाउंडर्स डोंट अकाउंट फॉर देयर कॉस्ट कि भाई मैं तो है ना घर पे बैठ के बना रहा हूँ। अगर आप समझो नौकरी कर रहे होते तो 80,000 या 70,000 कमा रहे होते। अब उस पैसे को पर बॉटल के कॉस्ट पे डालो। दूसरा, अगर आप 1000 बॉटल बनाओगे तो आपको और लोग भी चाहिए होंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो अपनी टीम की कॉस्ट, क्योंकि टीम की भी एस्पिरेशंस होती है, बिना टीम के आप कोई धंधा नहीं बना पाओगे,
टुडे वी हियर एज अ कंपनी हैज़ 100+ एम्प्लॉयज़. तो हमने जब शुरू किया तब 5 एम्प्लॉयज़ थे, 5 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 100. तो सब एम्प्लॉयज़ का पेरोल करना है, हर एम्प्लॉय को मार्केट में ग्रोथ चाहिए. सर साल ख़त्म हो गया, अप्राइजल चाहिए, करेक्ट. तो अप्राइजल और ये सबका कॉस्ट अगर आप नहीं अकाउंट करोगे तो अल्टीमेटली वो कैसे बिजनेस को सस्टेन करोगे, राइट. सो आपका प्रोडक्ट बहुत अगर क्वालिटी अच्छा है तो कस्टमर पे करेगा. तो आपको प्राइसिंग पे भी फोकस करना है. जहाँ पे 90% जो होममेड बिजनेसेस होते हैं वो इसीलिए कुछ कस्टमर्स को सर्व कर पाते हैं. उसके बाद वो जब एक्सपांशन करने जाते हैं बोलते हैं नहीं यार इसको बड़ा बनाने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, फैक्ट्री का खर्चा लगेगा, तो एक काम करते नहीं करेंगे. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अकाउंट कॉस्ट ऑफ स्केलेबिलिटी. अकाउंट कॉस्ट ऑफ स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले 5 या 10 प्रोडक्ट बना लोगे खुद अलग है, बट अगर आपको यही प्रोडक्ट 10,000 पर मंथ बना के बेचना है तो उसका नंबर्स आज से ले लो, करेक्ट. और आपका प्राइस पॉइंट वही होना चाहिए. अगर आपने प्राइस नीचे रखा है ना तो उसको मार्केट में बढ़ाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. प्राइस ऊपर है और डिस्काउंट करके बेचना है तो ईजी है. सो ऑलवेज पुट वैल्यू टू योर टाइम एज फाउंडर्स, पुट वैल्यू टू योर टीम मेंबर्स टाइम, तभी आपका टीम आपके साथ टिकेगा. अगर आप उनको अच्छे से पे नहीं कर पाओगे तो उल्टा आपने किसी कॉलेज से स्टूडेंट को हायर किया, 2 साल तक ट्रेन किया, कोई बड़ी कंपनी आके ले जाएगी, करेक्ट. तो आपने तो उसको पूरा ट्रेन कर लिया, सब मेहनत कर लिया, और कोई बड़ा कंपनी आके ले जाएगा. नाउ कमिंग फ्रॉम दिस कैक्टस टू वी हियर, कि जब मैं ये कैक्टस का रिसर्च और ये कर रहा था तो आई वॉज इंक्यूबेटेड इन अ इंक्यूबेशन सेंटर नोन एज GUSEC एंड iHub. तो दैट्स वेयर आई मेट माई को फाउंडर ऑफ वी हियर. हिज नेम इज़ कनिष्क पटेल, ही इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. और ये सारे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वी ईयर के, वी आर इनटू हियरिंग एड्स एंड हेडफोन्स. और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा डोमेन नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का 10% भी नहीं समझ में आता है. तो मुझे जो समझ में आया था वो था बिजनेस बनाना, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड थिंग्स. तो मैं पहले वी ईयर का, आई वॉज द फर्स्ट पेड कस्टमर ऑफ वी ईयर. 2017 में वी ईयर शुरू हुआ. 2017 में मैं भी iHub में कैक्टस जूस पे काम कर रहा था. तो मैं बहुत ट्रैवल करता था इसके लिए, तो मुझे फ़ोन पे बात करने में दिक्कत होती थी बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर्स इन अ ईयर्स टाइम. मतलब एवरेज मेरा ट्रैवलिंग 5 से 6,000 किलोमीटर हर महीने पर मंथ होता था. और उसमें सुबह निकल गया वहाँ 8 बजे गाड़ी लेके एक फार्म पे, ये वो. तो उस टाइम पे फ़ोन पे बात करने में दिक्कत हुआ. तो मैं पहला, क्योंकि ये स्टार्टअप वहीं iHub में था, तो मैं उसका पेड कस्टमर बना. प्रोडक्ट पसंद आया, फिर मैं कॉस्मो के लिए मार्केटिंग के लिए बहुत जगह पे जाता था. मुंबई गया, कहीं एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया, वो किया. तो वहीं पे स्टॉल में हसल करते करते मैंने इसके 4-5 पीस लेके गया था. यार तेरे चल 5 पीस मैं बेच दूंगा, तू क्या प्राइस पे देगा. वहाँ से मुझे समझ में आया कि मेरा एक्चुअल कोर इज़ मार्केटिंग एंड हाउ टू स्ट्रक्चर अ बिजनेस. मुझे मेरे स्टार्टअप लाइफ के 4 साल के बाद समझ में आया कि मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, करेक्ट. तो हर फाउंडर को ये समझना चाहिए कि आपके अंदर क्या एक्सपर्टीज़ है. तो अगेन गिविंग दिस एग्जांपल आपको ये समझाऊंगा कि कनिष्क ही इज़ एन अमेजिंग इंजीनियर. अगर आज मैं उसको ये बोल दूं कि यहाँ पे आके बात करनी है तो ओरेटर नहीं है, बट इज़ एन फैंटास्टिक इंजीनियर, करेक्ट. अगर कनिष्क और मैं नहीं मिले होते तो आज वी हियर ये कंपनी नहीं बनी होती. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम इम्पॉर्टेंट, कनिष्क के बिना वी हियर भी पॉसिबल नहीं है और राज के बिना भी वी हियर पॉसिबल नहीं है. वो क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट थी. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम LD से इंजीनियरिंग किया. मैं जब उसको मिला था वो 22 साल का था. तो नॉर्मल इंजीनियर्स को क्या होता है, प्रोडक्ट समझ में आता है, इंजीनियरिंग समझ में आता है. आपने फूड टेक्नोलॉजी किया, किसी ने कॉस्मेटोलॉजी किया, किसी ने BCom किया, तो आपको अपने डोमेन का थोड़ा अनुभव होता है. बट आप जब बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको 360 डिग्री एक्सपीरियंस चाहिए. आपको रिक्रूटमेंट चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, आपको ऑपरेशन संभालने हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज चाहिए. तो दैट बिकम अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट बिटवीन मी एंड हिम, कि भाई तेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मेरे को प्रोडक्ट बेचना आता है, और मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ. तो हम दोनों ने जब इस चीज़ को फोर्स किया आगे, तो 2019 वी जॉइंड आर हैंड्स एंड वहाँ से वी ईयर की जर्नी शुरू हुई. तो उस टाइम पे कॉस्मो तो चल ही रहा था धीरे धीरे, क्योंकि सस्टेनेंस, पेट पालना था. तो वहाँ से ऐसा हो रहा था कि महीने के 50-60 हज़ार का प्रॉफिट बन रहा है तो कॉस्मो चलाते रहो. एंड देन धीरे धीरे कॉस्मो ने भी स्केल किया एंड वी हियर में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू किया फॉर पीपल हु कुड लिसन विदाउट सर्जरी. अगर आपको कान नहीं है या कुछ नहीं है
तो आप बिना सर्जरी के सुन सकते हो। तो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, वो प्रोटोटाइप बनाते बनाते 2021 हो गया। तो शुरुआत में वी ईयर की टीम सिर्फ 5 लोगों की थी, जिसमें मैं और कनिष्क और 3 इंटर्न। तो टोटल 3 इंटर्न्स का पेरोल 24,000। कनिष्क तो ले नहीं रहा था कोई सैलरी और मैं कॉस्मो से। तो हम लोग ने 2 साल तक बिना कोई खर्चा ऐसे किए हुए ग्रांट्स के थ्रू इसको फोकस किया। तो ये मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आज काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है एंड गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी ग्रांट दे रही है, 10-10 लाख तक की ग्रांट मिल रही है। अगर आप एक स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे आपको पर्सनल 1-1.5 साल का रनवे मिल जाता है कि चलो ठीक है सस्टेनेंस करना है तो ये ग्रांट्स को आप यूटिलाइज करो एंड अपने आप के लिए 1-2 साल का रनवे बनाओ। और कुछ ऐसे इंटर्न्स को हायर करो जो आपके साथ उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म जाना चाहे। वो हम वी ईयर के एसेट बनाते हैं। आज जो वो इंटर्न्स शुरू ज्वाइन हुए थे हमारे साथ, वो हमारे वी ईयर के आज के एम्प्लॉयज़ हैं, लीडरशिप पोजीशन पे है। तो हमको अब उनको काम समझाना नहीं पड़ता, उसको बोल दिया कि ये करना है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि आपको इंटर्न्स हायर करना है तो उसमें उसकी एनर्जी देखो। ऐसा नहीं कि यार मेरे को काम कराना है, मेरे को तुरंत काम चाहिए, मैं किसी को भी ले लेता हूँ। आज हम लोग कोई भी स्टार्टअप में जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट करते हैं, मैं सबसे पहले वो पर्सन का माइंडसेट चेक करता हूँ कि यार ये पर्सन को लॉन्ग टर्म काम करने में मज़ा आएगा, इसको एक्चुअली ये काम करने में मज़ा आएगा, तभी उसको इन्वॉल्व करो। नॉट जस्ट कि उसको उस टाइम पे 5-10 हज़ार पैसा चाहिए, वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो गया। अगर वो माइंडसेट से करोगे तो 5-6 महीने के बाद वो भी भाग जाएगा। करेक्ट। सो ये एक होता है टीम बिल्डिंग की बात कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट चाहिए होगा अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो। इंडिविजुअली कोई भी जर्नी को आप नहीं रन कर पाओगे, क्योंकि स्टार्टअप इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस। मतलब ये मैराथन है और ये ऐसा मैराथन है जिसमें एंडिंग लाइन भी नहीं है। तो अगर कोई मैराथन में एंडिंग लाइन नहीं है तो आपको एनर्जी सस्टेन करके रखनी है, आपको जर्नी को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पहुँच गए तो जर्नी कंप्लीट हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट फाउंडर्स, और दूसरा खुद का कोर अंडरस्टैंडिंग करना। तो 2021 में जब मैंने पहला राउंड वी ईयर में रेस किया, सेटअप किया, ये सब किया, तो तब मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरा फाइनेंस और स्ट्रेटेजी वाला एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लकीली पोस्ट कोविड आई मेट अर्जुन, तो ही इज़ हियर। तो ही इज़ बिन अ फाउंडर। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरू किया था एंड कोविड के वजह से इट डिड नॉट वर्क वेल। तो मैंने वहाँ पे रियलाइज़ ये किया कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है मैं स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस दे सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों चीज़ पे चलता, जहाँ पे कॉस्मो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा था बराबर, और वी हियर जो अभी शुरुआत के ग्रोथ फेज में है, तो मैं ये सोचता कि मैं दोनों चला लेता हूँ। अगर मैंने वो गलती की होती उस टाइम पे तो आज दोनों में से कोई कंपनी अवेलेबल नहीं होती। उस टाइम पे मैंने खुद को डिसाइड ये किया कि नहीं, अगर ये कॉस्मो को धीरे धीरे कैक्टस को ग्रो करना है, आई नीड समवन जिसको एग्रीकल्चर और इस तरीके के सोशल बिजनेस का आइडिया है। और आई हायर्ड अ सीईओ एज अ फाउंडर सीईओ। मैं और अर्जुन जुड़ गए। मैंने बोला कि भाई कॉस्मो आप संभाल लो एंड 100% ऑटोनोमी। मतलब अगर मैं उनके साथ आज काम कर रहा हूँ उस बिजनेस में तो नो क्वेश्चंस कि वो डिसीजन क्या ले रहा है। फिर मैं वी हियर पे फुल टाइम फोकस कर पाया। तो अगर आप 2 बोट्स में कभी भी ट्रेड करते हो ना, कि नौकरी के साथ स्टार्टअप नहीं होगा। मतलब वेरी फैक्चुअल थिंग, या तो नौकरी करो या स्टार्टअप करो। अगर एक स्टार्टअप में आपने शुरू किया, कुछ नहीं चल रहा और कोई दूसरा आइडिया अच्छा चल सकता है जिसमें आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, अगेन दोनों के बीच में पैर मत डालना। नेवर कीप योर लेग्स इन 2 बोट्स, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत समय चाहिए होता है उस चीज़ को ग्रो करने के लिए। बट अगर आपके पास वो समय आप डेडिकेटेडली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं दे पाओगे तो आउटपुट नहीं आएगा। तो आई मेड अ स्विच कि मेरा कोर कॉम्पिटेंसी था फाइनेंस, स्ट्रेटेजी एंड B2B मार्केटिंग। तो मैंने सोचा कि चलो वी हियर इज़ अ बिगर प्रोडक्ट देन कैक्टस जूस, तो मैं अपनी एनर्जी वहाँ लगाता हूँ एज अ फाउंडर एंड अर्जुन विल टेक केयर ऑफ रनिंग द होल कॉस्मो एंड ग्रोइंग, क्योंकि उसकी स्किल सेट ऑपरेशंस एंड एग्रीकल्चर साइड में थी। हमने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया और आज कॉस्मो भी बहुत रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग। तो 2021 की वो जर्नी है एंड देन 20 to 23। सो 2022 में हम लोग सूरत में एक एक्सपो में स्टॉल लगाए थे वी ईयर का। तो अगेन आई हब ने हमें स्पॉन्सर किया था कि पाटीदार एक्सपो हुआ था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्टार्टअप फेज़ में हो, आप जितने लोगों को मिलोगे, जितना नेटवर्क करोगे और जितना खुल के बात कर पाओगे,
उसी में आपका एक वैल्यू बनेगा। आप कुछ छुपा छुपा के बात करोगे, गोल गोल जवाब दोगे, तो पीपल विल नॉट अप्रिशिएट यू। 2022 में मैं सूरत में पाटीदार एक्सपो में ये वी ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड दैट एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय SRK ग्रुप। सूरत में SRK डायमंड्स करके हैं, गोविंद भाई धोलकिया करके हैं, तो उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। एंड उनके किसी टीम मेंबर को पसंद आया हमारा प्रोडक्ट, उन्होंने हमें उनके ऑफिस बुलाया, एंड वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन हुआ कि सर हमको फंडिंग चाहिए, हम ऐसा काम कर रहे हैं, सोशली एक अच्छा चीज़ है एंड इट कैन हेल्प सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और हमको कितना पैसा चाहिए। तो मोटा मोटी मैंने बताया सर हमको इसको प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छा बना के एक लेवल तक ले जाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। एंड वहाँ पे वो कोई इन्वेस्टर होता है ना, वो आपका कमिटमेंट देखता है। मैंने बहुत सारे फाउंडर जैसे देखते, जैसे इन्वेस्टमेंट आता है उनका सैलरी कब ऊपर जाता है, वो गाड़ी अपना पगार 3 गुना कर दिया। आज भी वी ईयर में मैं वही सैलरी लेता हूँ जो 4 साल पहले लेता था। माई सैलरी इन वी ईयर इज़ नॉट मोर, मतलब काफ़ी सारे मेरे लोग हैं जिनका शायद सैलरी मेरे से ज़्यादा होगा। सो पॉइंट मैंने क्या किया कि इन्वेस्टर्स को ये आया कि मैं जो पैसा ले रहा हूँ वो पैसा सर मैं अपना घर नहीं भरने वाला हूँ। तो सामने उस टाइम पर उस इन्वेस्टर को फेथ आया कि नहीं, ये बंदा कुछ एक्चुअल सोशल रिफॉर्म के लिए जा रहा है। पैसा मार्केट में बहुत है, फंड रेजिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कोई भी पर्सन जब आप फंड रेजिंग इन्वेस्टर जाता है ना, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा फाउंडर पे पैसा लगाता है। उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया, उस टाइम पे नहीं, उस वो राउंड होने के बाद 2-3 साल में समझ में आया। जब मैं गोविंद काका को या उनकी टीम से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि वी ऑलवेज बेट ऑन फाउंडर्स, वी नेवर बेट ऑन प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टर्स नेवर बेट ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट और ख़राब फाउंडर। मतलब फाउंडर का क्या हो गया, आपका माइंडसेट, आपका एथिकल अप्रोच। तो अगर एक एवरेज प्रोडक्ट है और गुड फाउंडर है तो इंडस्ट्री बन जाएगी। वेरी गुड प्रोडक्ट बैड फाउंडर, नॉट अ गुड मिक्स। तो वहाँ पे जो आपके की पॉइंट्स हैं कि आप अगर फेल हो रहे हो तो खुल के बोलो कि सर ये गलती हो गई, ये नहीं हो पा रहा है, या ऐसा है तो यही है। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे बात किया SRK में, तो बोला सर देखो हमको तो इसमें विजन है कि ये प्रोडक्ट को बड़ा बनाना है, भले हम 2-3 साल सैलरी ले ना ले, हम इसमें कमिटेड है। और हंसते हंसते एक थोड़ा वो विट भी चाहिए। जब आप बात करते हो तो हर बार सीरियसली बात मत करो, थोड़ा हंसी मजाक से बात करो। बोला सर देखो वैसे भी आप मंदिर में इतना डोनेशन दे ही देते हो, तो आप इसको एक डोनेशन समझ लेना, अगर काम नहीं हुआ तो बराबर है, बट इससे मैं पैसा अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। तो सामने वाले को समझ में आया कि नहीं चलो इसके ऊपर एक बार रिस्क लेने के लायक है। उनने इवेल्युएट किया, एंड देन वी गॉट आवर सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग। तो हम लोग कभी शुरुआत में ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के पास नहीं गए। आज क्या होता है, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ये स्टार्टअप को इतना पैसा मिल गया, ये स्टार्टअप को इतना पैसा मिल गया, बट आप पूरे साल में टोटल फंडिंग देखोगे तो 100-200 स्टार्टअप को मिला। और इंडिया में साल भर में 2 से 2.5 लाख स्टार्टअप शुरू होते हैं। सो आप उसके पीछे मत जाइए। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सीधा इमीडिएट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। आपके पास अगर समझ लो 1 करोड़ रुपए है, तो आप अगर बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा 7% के आसपास, करेक्ट। म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 12% मिल जाएगा। थोड़ा हाई रिस्क स्टॉक में डालोगे तो 20-22% मिल जाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टर है जो वेंचर फंड है, वो आप में तभी पैसा लगाएगा जब उसको 30 से 35% रिटर्न मिले। मतलब आपको पैसे को हर 1 या 2 साल में डबल करना है, करेक्ट। तो वेंचर कैपिटल इज नॉट द राइट कैपिटल इन द इनिशियल फर्स्ट 2 और 3 राउंड्स ऑफ फंडिंग, क्योंकि उनका अगर पैसा गलती से मिल भी गया आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको हर 2 हफ्ते में ये बोलेगा सेल कितना आया। बट आप उस फेस में हो जहाँ पे तो प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो आपकी थिंकिंग के साथ मैच नहीं कर पाएगा। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव कैपिटल, जिसमें आप सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते शुरू हो जाओगे, फिर आपको डीमोटिवेट कर देंगे, आपका वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे, यू विल एंड अप द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो फ्रेंड्स, फैमिली, HNIs, तो अगर आप सोशल इम्पैक्ट या ऐसी किसी सेक्टर में हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन देयर लाइफ। अगर वो पैसा वो उनके पास जाके बोल दो कि सर हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके लिए करना है, तो पीपल विल बी रियली अप्रिशिएटिव टू एटलीस्ट सपोर्ट यू टू सम काइंड ऑफ लेवल। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड से। रेज मनी, अगर आप पैसा रेज करते हो अर्ली स्टेज पे, तो फ्रेंड्स, फैमिली या कोई HNI से करो जो इसको समझता है, पेन को, सोसाइटी की पेन को। देन बिल्ड अ प्रोडक्ट से पैसा बनना शुरू हो जाए, थोड़ा कैपिटल
आना शुरू हो जाए, कि थोड़ा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया, फिर वेंचर फंड पे जाओ। क्योंकि कोई भी HNI होगा वो कितना पैसा निकाल के देगा, 50 लाख, 1 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगा। मेरे पास 100 करोड़ है तो उसमें से मैं 1 करोड़ का रिस्क लूंगा, करेक्ट। बट अगर आपको अब 8 करोड़ चाहिए या 80 करोड़ चाहिए, उस टाइम पे आप वेंचर फंड के पास जाओ कि सर मैंने प्रोडक्ट बना लिया, वैलिड हो गया, सर्टिफिकेट है कि जो आदमी नहीं सुन पाता इससे सुन पाएगा, और ये मेडिकली प्रूवन हो गया, अब इसको आगे ले जाने के लिए मुझे बड़ा पैसा चाहिए, इसमें मेरा इतना कैश फ्लो है। सो आपको एक कैश फ्लो एनालिसिस भी करना चाहिए। मतलब अब जितने लोग अगर यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बिजनेस में 4 साल का फोरकास्टेड या 5 साल का कैश फ्लो बनाओ, एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद, और फिर उसको अचीव कैसे करना है, वो सेल्स नंबर को, उसके पीछे बहुत रोबस्ट प्लान होना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू डू। तो काफ़ी सारे फाउंडर्स ये नहीं करते हैं, बिजनेस प्लान बनाते वक्त तो कैश फ्लो बना देते हैं क्योंकि इन्वेस्टर को दिखाना है बड़ा बड़ा नंबर, बट उसमें हर सेल, मतलब मैं इतना प्रोडक्ट बेचूंगा, यूनिट इकोनॉमिक्स, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हेडफोन बनेगा, तो ये हेडफोन बनेगा तो कितने में बनेगा, ये 4000 में बनेगा, इसको हम 3.5 में बना सकते हैं, सेल्स कितने में करेंगे, 6 में करेंगे कि 10 में करेंगे। उसको सेल्स करने के पीछे अगर मैं महीने के 1000 बेचूंगा, तो 1000 कैसे बेचोगे, कौन से चैनल से बेचोगे, B2B बेचोगे, अमेजोन पे बेचोगे, या कैसे सेल करोगे, हर एक चीज़ का डिटेल्ड आपके पास एक आंसर होना चाहिए। सो दैट ओनली गिव्स यू अ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान। तो काफ़ी सारे फाउंडर्स जो होते हैं, दे फेल टू प्लान। वो बोलते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, कि भाई अगर आपने ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो फ्यूचर में काफ़ी सारे इश्यूज इसमें आपके आ सकते हैं। सो दैट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट। एंड देन केम 2023, तो हमने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया था, तो हम लोग शार्क टैंक पे गए, तो दैट टाइम वी हैड द हाईएस्ट आस्क ऑफ वैल्यूएशन सीजन 3 में। वी रेज्ड अराउंड एट 250 करोड़ वैल्यूएशन। और जैसे अगर जिन लोगों ने पिच देखी है तो सुनते ही अरे इतना वैल्यूएशन, तो मैंने वो माइंड करके ही गया था कि अगर शार्क टैंक पे जाना है, अगर मैं इतने बड़े नेशनल ऑडियंस पे जा रहा हूँ, अगर मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज पे हो गया, अर्ली फेज पे होगा, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा, राइट। और अगर वहाँ जा भी रहा हूँ तो मुझे उसी स्केल पे या उसी पे जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले प्रोडक्ट पे काम किया। 2022 में भी सीजन 2 और सीजन 1 भी आया था, बट वी सेड नो, वी डोंट वांट टू अप्लाई नाउ। हमको तभी अप्लाई करना है कि जब हम हमारे मोड पे नेगोशिएट करके वो डील लेके आ सके, करेक्ट। तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये वैल्यूएशन पे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। अगर आप वो कॉन्फिडेंस से किसी इन्वेस्टर के साथ जाओगे ना, तो आप हमेशा एक डील सिक्योर करके आओगे, क्योंकि सामने वाला है ना आपकी कॉन्फिडेंस देखता है। मैंने बोला फाउंडर, उनके जितने क्वेश्चंस थे हमने एकदम शांति से जवाब दिए थे। सो वी आर नॉट वेरी, ऐसा भी नहीं था कि डर था कि यार हम टैंक में जा रहे हैं, लोग क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, बट हमारे पास नंबर्स, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से थे। ऑलमोस्ट 30-40 एपिसोड्स मैंने पहले के देख रखे थे कि वो बाकी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका क्वेश्चनिंग टाइप क्या होता है, वो किस तरीके से किन किन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। सो दैट वाज लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस वी हैड। सो विच मीन्स व्हेन आई वाज प्रिपेयर्ड, आई वाज नॉट एंग्शियस। मैं वहाँ पे जाके मेरे पसीने नहीं छूट रहे थे कि यार ये 250 के बदले में 100 के वैल्यूएशन पे आ जाए, लेके निकल जाते हैं। नहीं, क्यों लेके निकल जाएंगे, जो चाहिए एक फेयर आस्क है, उस आस्क के सामने नेगोशिएट करके लेना था। सो वी केप्ट ऑन गिविंग देम आंसर्स कि नहीं ठीक है, इसका प्रोडक्ट वैलिडेशन हो गया, हाँ सर ये पेटेंट है, आप चेक कर लो, आप इतना मार्केट कर रहे हो, हाँ सर इतना मार्केट कर रहे हैं, हम इतने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में गए, यहाँ पे गए, इस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। तो वी वेर मच 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 मोर प्रिपेयर्ड व्हेन इवन बिफोर गोइंग टू द शूट फॉर शार्क टैंक। तो प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूँ तो उसके पहले सामने वाला क्या प्रश्न पूछेगा और सामने वाला मुझे क्यों मिलना चाहता है, वो सारा मेरे दिमाग में हो जाता है, भले मीटिंग 5 मिनट की हो। आई ऑलवेज थिंक कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सो अगर आप वैसे सोचना शुरू करोगे तो आप किसी भी नेगोशिएशन में हो, वो फंडिंग के नेगोशिएशन हो या इवन ट्रेडिशनल, शायद आप एम्प्लॉयमेंट भी कहीं नौकरी भी जाना चाहते हो, तो ऑलवेज आस्क। अगर कई बार होता है ना कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर और इंटरव्यू में होता है कि जैसे जो इंटरव्यूअर ने बोला हाँ, अगर इंटरव्यू ये पूछना शुरू करे कि सर आपको ऑफिस में क्या काम चाहिए, मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ बट आप बताओ आपको क्या चाहिए, सामने वाले का पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा, करेक्ट। कि
ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई नीड। ये नहीं बताना चाहते कि उसको क्या आता है, वो ये करना चाहता है जो मुझे चाहिए, करेक्ट। सो ऑलवेज गो इन टू अ रूम एंड नेवर स्टार्ट अ ऑर्गेनाइजेशन विथ वॉट आई वॉन्ट, ऑलवेज स्टार्ट अ कम्युनिकेशन विथ वॉट यू वॉन्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू इन दैट, मेरा काम हो गया, करेक्ट। तो ये एक अगर आप अप्रोच रखोगे तो कभी भी कोई भी नेगोशिएशन में आप लूज नहीं करोगे, बिकॉज एनी नेगोशिएशन इज पॉजिटिव ओनली व्हेन देयर इज विन विन। सामने वाले का विन है तो आपका विन उसके अंदर आराम से आ गया, मतलब आप उस चीज़ को अगर समझ के करोगे तो यू विल ऑलवेज सक्सीड, इफ इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप, if it's a normal job interview, if it is a anything that you are part of. So शार्क टैंक में इट वेंट वेल, वी हमारा ज़्यादा वैसे नेगोशिएशन ज़्यादा नहीं हुआ, हमने हर बार नेगोशिएट करने के बदले में काउंटर किया विथ वैलिड पॉइंट्स, एंड दैट फाइनली गॉट अस द डील। वो डील करने के बाद 23 to 25 इट्स बिन अगेन मोर 2 years। तो वो पैसा आने के बाद अभी हम ये करते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करना है। सो इट इज़ अगेन अ डिफरेंट टास्क, कि उस समय हमारे पास 20 से 25 एम्प्लॉयज़ थे, आज हमारे पास 109 एम्प्लॉयज़ हैं। तो होता ये है कि जब शुरुआत में कोई टीम होती है, तो यहाँ पे कुलदीप है या कुछ लोग हैं जो मेरे टीम में से हैं, दे हैव बीन देयर फॉर सो मच टाइम। तो शुरुआत में उनको ये होता होगा कि यार पहले तो राज सर के साथ हम लोग हफ्ते में 2 बार मिलते थे, अब वो 2 महीने में 1 बार नहीं मिलते, राइट। तो अब आपको लीडरशिप टीम बनानी पड़ेगी, आपको अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि हाउ कैन दे लीड द टीम, करेक्ट। अगर मैं ही सब कुछ करते रहूँगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं हो पाएगा। सो वहाँ से पहले आपने फाउंडर्स टीम बनाई कि आप 4-5 लोग काम कर लो, फिर वो 4-5 लोग से भी काम नहीं होगा, आपको 10 से 15 लोग चाहिए होंगे जो अलग अलग वर्टिकल्स में एक्सपर्टीज़ करे, एंड अपने ही टीम को अपस्किल करना पड़ेगा। सो वी आर ऑल्सो लर्निंग, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि माई जर्नी ओवर हियर इज स्टिल लर्निंग, आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। अभी एंड नहीं हुआ, प्रॉबेबली 3 years डाउन द लाइन इफ़ आई एम स्पीकिंग समवेयर एल्स, शायद मैं शेयर कर पाऊँगा कि उस टाइम के लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे क्या क्या रहे। सो दैट्स प्रिटी मच। और उसके बाद वन मोर की थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन। मैंने अगर वी ईयर से कुछ एग्जिट लेके पैसा कमाया तो दो ऑप्शंस होती हैं। 90% पीपल मेक अ मिस्टेक ऑफ इंक्रीजिंग देयर लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर। गलती मत करना ये, आप जितना वो सिंगम में बोलते हैं ना कि हमारी ज़रूरत कम है इसलिए हमें दम है, करेक्ट। तो लाइफ में अगर आपको महीने में लाख रुपए के सस्टेनेंस हो रहा है और अगर आपका स्टार्टअप के सैलरी से वहीं से निकलता है, तो मैंने जब भी स्टार्टअप से एग्जिट लिया, आई ऑलवेज री इन्वेस्टेड दैट मनी इन अदर स्टार्टअप्स, करेक्ट। सो मैंने ग्रीनोमर्स करके एक बायोपॉलीमर इंडस्ट्री में जो बताया, आई बिकम अ को फाउंडर फॉर अ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव। 2023 में आई इन्वेस्टेड से फ्यू लैक्स, टुडे दैट कंपनी इज 100 crores मार्केट वैल्यू। तो उसने रिटर्न भी मेरे को जनरेट करके दिया, प्लस मैंने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसी पर्सन को आगे भी लेके गया। आप उस पैसे को अगर रिसर्कल करते हो बैक इनटू द इकोसिस्टम सपोर्ट्स यू इन अ वेरी नाइस मैनर। और आईसेक का काफ़ी एक अच्छा पार्ट मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग आईसेक को जानते हैं नहीं जानते, सो आईसेक हैज़ बीन अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ माई लाइफ जर्नी, क्योंकि अहमदाबाद में मेरी एजुकेशन हुई अप टू आई वुड से, मुंबई में मैं गया स्टैंडर्ड 6 से, तो 6 से पहले सूरत, सूरत से पहले अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आई वॉज इन GLS, सो इट वॉज गुजराती मीडियम। गुजराती मीडियम से मैं गया सीधा CBSE में, एंड मुंबई में पूरा कल्चरल शॉक। सो आई वॉज नॉट अ एक्सट्रोवर्ट लाइक दिस, मतलब मैं कभी शायद इतना कॉन्फिडेंटली बात करना या स्कूल में ग्रुप्स में करना वो मेरा नहीं था। लकीली विथ आईसेक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई ट्रैवल टू चाइना, और वो मेरा लाइफ का सबसे पहला फॉरेन ट्रिप था। एक ऐसा कंट्री जो इतना रिस्ट्रिक्शंस में है, मैं लाइफ में कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, एंड देयर आई हैड टू स्टे फॉर 54 days, ठीक है। जेब में जो पैसा था, एक वो उस टाइम पे HDFC का फॉरेक्स कार्ड आता था, तो $1000 लोड किए थे। मुझे ही पता था कि इतने में ही चलाना है ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं हो रहा। आई वेंट देयर विदाउट एनीथिंग कि देख लेंगे, तो वो माइंडसेट से गया। फिर आई मेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हम लोग एक इतने छोटे से आई वुड से
12x12 के रूम में 3 बंक बेड थे, 12x12 के रूम में हम लोग 6 लोग रहते थे, और उसमें कोई विंडो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कॉमन वॉशरूम। देयर वाज 1 पर्सन फ्रॉम फिनलैंड, 1 पर्सन फ्रॉम इक्वाडोर, 1 पर्सन फ्रॉम यूएस, मैं इंडियन था। तो हम लोग वहाँ पे आईसेक के थ्रू गए, वहाँ पे मैंने इंटरेक्शन लोगों के साथ शुरू किया, समझ में आया कि इंडिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है, दुनिया क्या अलग चीज़ है, तो पर्सपेक्टिव बनना शुरू हुआ। एंड दैट्स वेयर आईसेक रियली हेल्प मी, एंड व्हेन आई केम बैक आई बिकेम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई ना कोई इंटरनेशनल इंटर्नशिप करना चाहिए, एंड फोकस अपॉन अ entrepreneurship और एनी काइंड ऑफ बिजनेस बिल्डिंग internship if you get through ISEC, that will add a lot of value। आप 2-3 महीना 4 महीना जाके आओगे, आप उस पैसे को मत गिनो। एक्चुअली अगर आप लो सस्टेनेंस करते हो ना, तो आप आराम से निकल जाओगे। आपको कोई अगर कोई स्टाइपेंड देता है $300 $400 पर मंथ, फिर तो उस स्टाइपेंड पे आप बहुत अच्छा सस्टेनेंस निकाल लोगे, आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, बट उससे जो लर्निंग मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। So that helped me to build a different kind of person who I am। And पिछले 2 साल से हमने आईसेक के साथ टाई अप किया, बिकॉज अगेन गिविंग बैक, आई फाउंड दैट दिस वाज अ रियली गुड थिंग फॉर अस। तो हमने पहले 5 इंटर्न्स हायर किए अलग अलग कंट्रीज से, यहाँ पे आए, उन्होंने काम क्या किया नहीं किया, वी होस्टेड देम फॉर 3 months, बेसिक काम दिया, वी अंडरस्टूड देयर कल्चर, एंड इट वाज क्वाइट अ लर्निंग। अभी सेकंड बैच किया हमने, सो वी हैड अ पर्सन फ्रॉम टर्की, वी हैड अ पर्सन फ्रॉम बुर्किना फासो, अलग अलग कंट्रीज से हैं, एंड लकीली नाउ उन लोगों से जो हमें अभी लीड्स मिल रही हैं उन कंट्रीज़ में बिजनेस ग्रो करने के लिए इज़ रियली फैंटास्टिक। तो ये एक आईसेक का भी बहुत अच्छा मेरे खुद के लर्निंग रोल में रहा। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो इंटरनेशनल मार्केट्स में काम में आ सकता है, तो यू मस्ट लेवरेज आईसेक प्लेटफॉर्म, बिकॉज बाहर से भी काफ़ी सारे इंटर्न्स आते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। अगर आपका फॉरेन मार्केट अच्छा है उस प्रोडक्ट के लिए, तो दे कुड बिकम योर एम्बेसडर्स। अगर बाहर किसी एम्प्लॉय को हायर करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, प्लस बिना उस पर्सन को जाने आप हायर कैसे करोगे। अगर आईसेक के थ्रू कोई आता है आपके स्टार्टअप में, तो आप उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए आपके पास 2-3 महीने का टाइम है कि इज़ दैट पर्सन एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबल और नॉट। तो ये आईसेक का प्लेटफॉर्म को इस अच्छे से तरीके से लेवरेज किया जा सकता है। सो इट इज़ ट्रूली एन अमेजिंग स्टूडेंट बॉडी विच इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क। बस दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अब आई वुड लाइक टू आप सबके क्वेश्चंस जानना चाहूँगा। Hello, sir. Yeah. This is Voshank Agarwal from Ahmedabad only, and I am a student entrepreneur. Like, मेगा भी प्रोटोटाइप बन चुका है, और मैंने जस्ट अभी आपके जब आप यहाँ बैठे थे तभी मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया, एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट आई वांट टू मीट यू। Sure, we'll catch up after some time. So 100%. if you, What are you doing right now? आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो? मेगा एक म्यूजिक ऐप है जो Okay. स्पॉटिफाई का कंपटीशन है। ओके, अब समझ जाए, मतलब आपको अब ज़्यादा इनसाइट मिल ही जाएगी, बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं, ठीक, श्योर बट प्लीज़ गिव मी योर मीटिंग। श्योर श्योर, विल कनेक्ट लेटर, श्योर। हाँ प्लीज सर। Can I sit and talk? हाँ आराम थी, एकदम कंफर्टेबल, तो मजा आवे। So, first of all, thank you. It's very nice to see a young person like you succeeding as an entrepreneur after having a management education. I have one question to ask, and that is, I believe that there are two kinds of people, and not everybody can be an entrepreneur. करेक्ट। There is the entrepreneur mindset, and there is the non-entrepreneur mindset. Or you might call that a salaried mindset. Somebody Correct. who likes to go, 9 to have a 6. peaceful job, हाँ. 9 to 6, आराम से काम करो, spend time with family, raise children, happy life. Entrepreneur is a very different character altogether, and I've had the chance of meeting some entrepreneurs. What do you think about this particular point? This is a very amazing input, I would say, कि not to say कि मैं entrepreneur बन गया इसलिए बता रहा हूँ, what you said is perfect। इसलिए मैंने बोला आप अपने आप को पहले जानो कि आर यू एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट, उसका कोई रूल बुक नहीं है।
आपको कोर्सेज मिलेंगे जो उसकी स्किल सेट देंगे, बट वो स्किल सेट से ज़्यादा माइंड सेट है. इट इज़ द माइंड सेट ऑफ टेकिंग रिस्क, इट इज़ द माइंड सेट ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, इट इज़ माइंड सेट ऑफ बीइंग कमिटेड टू समथिंग इवन इफ इट फेल्स. तो वो जो एक होता है ना, वो अंदर से आता है कि वो फायर है. मैंने दिशिल को बोला कि कल मैं कानपुर में था. आई हैड अ मीटिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी, और गवर्नमेंट का था तो थोड़ा डिले हो गया. यहाँ पे कमिटमेंट था कि हमें पहुँचना था, करेक्ट. तो आई हैड टू रीच हियर एनी हाउ. आई ट्रैवल्ड ओवरनाइट फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली 6-7 आवर्स, ठीक है. वहाँ से फिर फ्लाइट लिया दिल्ली से यहाँ आने के लिए. तो वो एक अंदर आपको फायर चाहिए कि अगर करना है ना तो कैसे भी करना है, बट वो चीज़ हर किसी के अंदर नहीं होती. सेकेंडली, कुछ लोग बहुत कंप्लाइंट माइंड के होते हैं. कंप्लाइंट माइंड मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, सो आई ऑलवेज व्हेन आई हायर अ पर्सन, आई कैटेगराइज पीपल इनटू 3 माइंडसेट्स: डोमिनेंट, स्टेडी एंड कंप्लाइंट. डोमिनेंट माइंडसेट ये होता है कि अगर आपके घर पे कोई बच्चा है और कोई गेस्ट आपने आइसक्रीम के लिए भेजा, सो डोमिनेंट आपने बोला कि अंकल के लिए आइसक्रीम लेके आओ, तो उसको अगर चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, वो सीधा चॉकलेट आइसक्रीम ही लेके आओ, पूछेगा नहीं. वो सिर्फ अपने दिमाग की करेगा, ठीक है. नॉट द राइट ब्रेन माइंड सेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो उसको जो चाहिए वही सुनेगा, उसको आगे पीछे का दिखाई नहीं देता है. सेकंड होता है कंप्लाइंट माइंडसेट. बहुत क्वेश्चन करता है, अंकल आप कौन सा आइसक्रीम खाओगे, चॉकलेट या वेनिला, चॉकलेट कप में या कोन में, ओके कप में, बड़ा या छोटा. ये आदमी ऐसा होता है कि जो बहुत डिटेल में जाता है. ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में, बट ही और शी कुड बी आइदर अ गुड एंटरप्रेन्योर और अ वेरी गुड पर्सन इन क्वालिटी कंट्रोल या अकाउंट्स. डोमिनेंट इंसान को अकाउंट्स में रख दिया, उसको उसकी गलती दिखाई ही नहीं देगी, करेक्ट. तो ये हो गया. एंड थर्ड होता है स्टेडी, जिसको हम कुछ जुगाड़ू बोलते हैं, कि उसको खाना है, बच्चे को तो चॉकलेट ही पसंद है. अंकल को पूछेंगे कौन सा खाना, अंकल ने बोला वेनिला, वो नीचे जाएगा चॉकलेट ही लेके आएगा, और अंकल को बोलेगा वेनिला ख़त्म हो गया था, आप चॉकलेट खा लेंगे, ठीक है. तो जो रास्ता निकालता है, करेक्ट. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है. आपको बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है, बट आप सामने वाले को बिना नाराज किए कैसे रास्ता निकालोगे? बिकॉज सी इट इज़ अल्टीमेटली टाइम. आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है, आपके सामने जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइम है, कि आप कितने टाइम में क्या प्रोग्रेस कर रहे हो. या तो आप फेल हो जाओगे या तो उसको सक्सीड करोगे. तो इट इज़ 100% आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर अ माइंड सेट रादर देन स्किल सेट. तो आई एग्री. Thank you. Good answer. I appreciate your gut and courage to develop the business, and being an entrepreneur has its own plus and minus point. So the product that you have developed, so how you get the idea of this kind of product, innovative kind of product? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट शायद मैंने मिस किया, मैं उस पर बात करता हूँ. तो हमने पहले जब वी ईयर में शुरुआत की थी, तो हमने ऐसे हेडफोन्स बनाने शुरू किए थे. तो ये हेडफोन ऐसे कान के बाहर लग जाता है और ये बोन के थ्रू आवाज़ अंदर कान में भेज देता है. तो ये आइडिया मेरा नहीं था, मैंने बताया कि आई एम अ को फाउंडर. ये आइडिया एक्चुअली जिसको आया था उसका नाम कनिष्क पटेल है, ही इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. एंड इसको आइडिया इसलिए आया था कि उसने यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था कि यूएस मिलिट्री में वो लोग हेलमेट पहनते हैं, और वो हेलमेट में ऐसा डिवाइस लगाया जाता है कि उनको टीम का कम्युनिकेशन भी सुनाई दे और बाहर का भी सुनाई दे. अगर आप समझो बैटल फील्ड पे हो और आपने कान में हेडफोन लगा के रखा है टीम के साथ बात करने के लिए, तो सामने से गोली आएगी, छाती से निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा. दूसरा, आप टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, कान खुले हैं और आप ऐसे कहीं पे भी घूम रहे हो, तो आप टीम से अलग हो जाओगे. तो यूएस मिलिट्री इस टेक्नोलॉजी को हेलमेट्स में यूज़ करती थी बहुत सालों से. तो कनिष्क ने इस पर काम किया हेडफोन बनाने में. तो यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल पार्ट आता है स्टार्टअप जर्नी का, जिसको हम बोलते हैं पाइवट, ठीक है. तो जब हेडफोन बना के बेचना शुरू किया तो हम कुछ सेल्स तक पहुँच पाए. फिर मार्केट में बोट है, नॉइस है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं. सो देर आर सो मेनी ब्रांड्स, हम उनके सामने कम्पीट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था. एक प्रोडक्ट तक तो आ गए जिससे थोड़ा पैसा कमा रहे थे, फिर हमारे यहाँ पे स्टक हो गया. वहाँ से दिमाग में ये आया, जो मेरे और कनिष्क के डिस्कशन में आया, कि अगर ये टेक्नोलॉजी में यहाँ से सुन सकते हैं तो जिन बच्चों का कान नहीं है या कान का पर्दा फट गया, क्या वो इससे सुन पाएंगे? दैट वाज एक डिस्कशन से आया.
तो हमने हमारे बिजनेस को पूरा चेंज कर दिया फ्रॉम हेडफोन्स कंपनी टू अ हियरिंग एड कंपनी फॉर पीपल हु आर बॉर्न विदाउट ईयर्स, के जिन्हें कान ना हो या कान नहीं है उनके लिए। तो उस प्रोडक्ट ने हमको हेल्प किया ग्रो करने के लिए 2022 से लेके 24 तक, कि हमने उन बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाया कि जिनका कान का पर्दा फट चुका है या कान नहीं है। अब वहाँ पे तो एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर को पे करने के लिए अच्छा था कि भाई जहाँ पे 10-15 लाख का सर्जरी हो रहा है वहाँ पे आपका 80,000 के प्रोडक्ट से आदमी सुन पा रहा है, तो उतना प्रॉफिट था मेरे प्रोडक्ट में। अभी हेडफोन का अगर आप मार्केट समझते हो, अगर मैं 4,000 का प्रोडक्ट बेचूँ, 3,000 का बनाऊँ, और मैं अगर 100 लोगों की टीम लेके बैठा हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। 100 लोगों का टीम का सैलरी हो जाएगा महीने का 50 लाख, तो मैं उतना कमा ही नहीं पाऊंगा अगर उस प्राइस पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा हियरिंग एड बनाना था जहाँ पे मैं पर पीस 20 से 25,000 कमा सकूँ, कि भाई महीने में मैंने अगर 100 भी पीस बेच दिए तो 25 लाख मिलेंगे और मैं 30 लोगों की टीम को चला पाऊंगा। तो मैंने हेडफोन से पाइवट किया ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए कस्टमर थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही थी, डोमेन वही रहा। हम जब शार्क टैंक पे आए तो पीयूष जी ने व्हेन ही इन्वेस्टेड, उन्होंने बहुत एक शांति से एक बात बताई कि ये कितना बड़ा मार्केट बन सकता है। दुनिया में बिना कान के बच्चे कितने हैं? 20 लाख। तो ये कंपनी कितनी बड़ी बन पाएगी? 200 करोड़ की, 300 करोड़ की। बट अगर आप इसको 20,000 करोड़ की बनाना चाहते हो तो नाउ यू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। तो हमने वो प्रोडक्ट तो बनाया। अब हम लोग उस प्रोडक्ट्स पे आ गए जहाँ पे सीनियर सिटीजन, जैसे अगर मैं बताता हूँ बहुत सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन ब्रांड्स हैं हियरिंग एड्स में, 1.5 से 2 लाख के उनके हियरिंग एड्स आते हैं। तो हमने देखा कि भारत में वो 5,500 करोड़ के हियरिंग एड्स हर साल इंपोर्ट किए जाते हैं, तो हम उस पर क्यों ना जाएं। और हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो आज हम इंडिया की ओनली कंपनी है जो हियरिंग एड्स बनाते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हियरिंग लॉस होता है और उसमें उनको 1.5-2 लाख की हियरिंग एड लेनी पड़ती है। हमारी कंपनी की बहुत अच्छी प्रोडक्ट उसके सामने 40,000 to 50,000 में अवेलेबल हो जाती है। तो हमने भी हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट धीरे धीरे स्टार्टअप के फेज़ और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया। तो अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कि आइडिया कई बार होता है कि शुरुआत में आपको आता है, फिर आपको मार्केट को क्या चाहिए और आपके बिजनेस को कैसी ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करना पड़ता है। Wonderful, wonderful. Thank you. थैंक यू सर। Hi Raj. है So my the basic question that how you focus on scaling up your business first. Do you think that social networking platforms are important to scale business, or maybe the word of mouth? And if you are really focusing on quality, then how you are able to match the cost? And obviously competition is everywhere. Yep. So how you are able to compete them? सो एक्चुअली इसमें 2-3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट इज़ हाउ डू यू मैच द कॉस्ट, सेकंड इज़ हाउ डू यू स्केल, एंड इज़ सोशल मीडिया रिलेवेंट फॉर इट और नॉट। तो ये डिपेंड इस पे करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और किस तरीके से। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मैंने सर के साथ बताया, पाइवट का यही आया कि जब हमने ये हेडफोन लॉन्च किया तो आई विल से माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर दिस वॉज 4,000 रुपीज़, और हमने उसको 10,000 में इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि आप अगर कोई भी D2C ब्रांड बनाते हो, ऑनलाइन ब्रांड जहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, तो आपका 20 से 30% पैसा एड्स में चला जाता है, करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे D2C स्टार्टअप्स कर देते हैं कि हम फेसबुक पे ऐड कर देंगे, मेटा पे या गूगल पे एड्स कर देंगे और उससे पैसा बना लेंगे। ट्रस्ट मी, फेसबुक एंड गूगल इज़ सक्सेसफुल ऑन डेथ ऑफ मल्टीपल स्टार्टअप्स, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स D2C में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के पीछे इतना पैसा चला देते हैं और वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि आज कस्टमर की लॉयल्टी है ना, इंडिया में या वर्ल्ड ओवर में प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ बहुत कम है। अगर आपको एक राइड हेलिंग ऐप है, एक्स ऐप है, उसमें अगर 50 रुपये राइड सस्ती मिल रही है, आप उस पर स्विच हो जाते हो, वहाँ पे वैसा ट्रैक्शन नहीं है। बट वो कस्टमर को अक्वायर करने में हम बहुत ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं। तो आई वुड ऑलवेज सी कि D2C स्टार्टअप्स को इस तरीके से स्केल नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट राउंड आ गया कि 300-400 करोड़ आपने रेस कर ली है और आप उसमें जलाओगे। बेटर टू नंबर 1 इज़ टू क्रिएट योर फर्स्ट सर्कल एंड फाइंड इन्फ्लुएंसर्स। हम लोगों ने इसमें यही किया कि हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया हियरिंग एड्स में,
कुछ ENT सर्जन्स हो गए, कुछ डॉक्टर्स हो गए, कुछ ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, जिनको हमने हमारा पार्टनर बनाया कि उनकी लोग सुनते हैं. वी वेंट B2B2C, वी नेवर वेंट डायरेक्ट टू सी. तो सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर अवेयरनेस. सोशल मीडिया विल कीप यू एक्टिव कि आप कुछ कर रहे हो, बट मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नाउ इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि बहुत लोग उसी एड स्पेस के लिए पैसा लगाते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी के पास बजट्स हैं, वो सस्टेन कर जाते हैं. बाकी स्मॉलर स्टार्टअप्स जनरली एंड अप हैविंग नेगेटिव ROI ऑन कैंपेन्स. अब सेकंड आपका क्वेश्चन आया क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट. तो ये भी एक जर्नी है सर. हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो आई एम वेयरिंग माई फर्स्ट वर्जन विच वी डेवलप्ड इन 2021. ये डिवाइस में 6 अलग अलग पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स मोल्ड है. तो 1.5-2 साल के बाद ये पार्ट्स कई बार खुल जाते हैं क्योंकि ग्लूइंग है. तो पहले हमने ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया विच वॉज बेसिक क्वालिटी. अब हमने इसका बहुत इम्प्रोवाइज वर्जन बना दिया है, बट वी डिड इट एट लेटर पॉइंट, और अब हम स्केल पे जा रहे हैं. तो हमने क्या किया कि पहले बीच में जब तक हमारे पास स्केलिंग के लिए पैसा नहीं था, इन्वेस्टर का पैसा नहीं था, तब तक हम लोग हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट पे चले गए, जो हियरिंग एड फॉर पीपल विदाउट ईयर्स. ऑलवेज गो टू अ B2B प्रोडक्ट विच कैन गिव यू अ हायर प्रॉफिट टिल द टाइम यू आर नेट प्रॉफिटेबल. रेज सम इन्वेस्टमेंट टू मेक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब यही प्रोडक्ट मैं शायद मार्केट में 1200 में बना पाऊंगा. एंड वेरी सून you will see us in market launching bone conduction headphones and amazing products at price point of 1500 to 2000. हम एक्सट्रीम क्वालिटी को अफोर्डेबिलिटी पे लेके जाएंगे, बट उसके लिए मुझे क्या लगा कि मुझे मशीन्स लाने पड़े उस क्वालिटी का टूलिंग लाना पड़ा. तो उसका इन्वेस्टमेंट 3.5 से 4 करोड़ का हो गया. तो मेरे पास वो पैसे 3 साल या 4 साल पहले नहीं थे. मैंने इसीलिए पाइवट करते गया कि मैं कैसे कैसे B2B प्रोडक्ट में भेजाऊँ, प्रॉफिट बनाऊँ, इन्वेस्टर के हिसाब से थोड़ा बिजनेस को पॉजिटिव बनाऊँ, इन्वेस्टर का पैसा लाऊँ, देन गो बैक टू दिस. सो इट्स अ you can say a choice or a decision that you keep on making over a period of time. Collaboration is the right strategy to go. आप हर see social marketing will burn you. I'll tell you कि उसमें अगर आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है या ऐसा कुछ है कि कस्टमर डाउनलोड करके खुद यूज़ करके चला जाए, तो अलग चीज़ है. आप फोकस ये करो कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपके टोटल सेल्स वैल्यू में 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. अगर आपका सोशल मीडिया पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 30 या 40% आ रहा है, सर वो सस्टेनेबल नहीं है, उसको इमीडिएटली स्टॉप कर लो. या प्लीज. My name is Amatullah. So my question is, when you were in your startup journey, so have you thought about plan B, or anyone who is starting his startup journey is to plan a plan B के ये नहीं work हुआ तो ये करना चाहिए, or you should be confident about what you are doing? तो ऑलवेज प्लान B C D होता है, B भी नहीं होता. सो अगर मैं समझाऊँ कि प्लान B ऑन अ पर्सनल लाइफ और ऑन अ बिजनेस, जैसे प्लान B मेरे को स्टार्टअप करना है, उसका प्लान B नहीं था. ठीक है, कि अगर ये फेल हुआ तो मैं जॉब में चला जाऊंगा. नहीं, मैंने अपने आप को एक टाइम दिया था कि मैं इतने टाइम तक तो मैं स्ट्रगल करते ही रहूँगा, क्योंकि देर इज़ नथिंग दैट हैपन्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फ्यू पीपल आर लकी हु गेट इट राइट ऑन द फर्स्ट साइड, बट आई नेवर हैड अ प्लान बी. क्योंकि जब प्लान बी होता है ना, अगर आप प्लान बी को ऐसे समझते हो कि स्टार्टअप एंड जॉब, अगर वो प्लान बी है तो नहीं होना चाहिए, कभी भी सक्सेसफुल नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिमाग है ना हर बार वेवर होगा. अगर आप प्लान बी ऐसे बोल रहे हो कि जो स्टार्टअप में काम कर रहे हो कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा. हाँ, स्ट्रेटेजिकली प्लान बी सी होता है बिजनेस में, और ए और बी नहीं होता. लिटरली हम सी और डी पे भी जाते हैं कि जब भी हम लोग फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाते हैं कि अगले साल धंधा क्या होगा, तो ये होता है प्लान ए कि यार ये बहुत बढ़िया होगा. प्लान बी नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लान सी ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा. तो हम कैसे सस्टेन करेंगे. तो हम उसके बीच में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं. और उसी में मैं बताता हूँ, इट इज़ अबाउट बीइंग फ्रूगल. अगर हम अपने बिजनेस को लो कॉस्ट पे वर्क करते हैं, मतलब मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना नहीं है. अगर आप फाउंडर्स हैं, आई वुड से आई कैन बाय अ लग्जरी कार और समथिंग वेरी एक्सपेंसिव थिंग. आई कुड हैव बीन बाइंग दैट 3 years बिफोर ऑल्सो. बट अगर मैंने वो कर लिया होता 3 से 4 साल पहले, तो मेरी टीम में भी ये लगता है ना कि राज भाई तो पैसा बना के खुद की ज़िंदगी में मज़ा कर रहे हैं. तो क्या हो जाता है कि टीम का भी
एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, जब टीम का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपके पास प्लान बी होता ही नहीं है. सी दैट प्लान बी इज योर अप्रोच टूवर्ड स्टार्टअप. आप कितना सिंपली उस बिजनेस को चला पाते हो, बीइंग ग्राउंडेड इज योर प्लान बी. कि अगर क्या मैं 50 एम्प्लॉयज़ या क्या मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे साथ 20,000 की स्टाइपेंड या सैलरी पे भी काम करेंगे. अगर मैं खुद स्ट्रगल करके दिखा रहा हूँ कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं मर्सिडीज़ में आ रहा हूँ और मेरा एम्प्लॉय आ रहा है साइकिल पे, तो प्लान बी नहीं काम करेगा. तो प्लान बी में आप भी खुद को प्लान बी में इन्वॉल्व करो. अगर आप प्लान बी में हो तो ही टीम प्लान बी में आएगी. Yeah. Hello. Yeah. Hi, sir. My name is Kush Oza, and I'm the head of finances for ISEC in Ahmedabad. And my question is like, since you changed your employment from a Celeride to startup journey, and to, I mean, what did your standard of living change significantly, or was there any, I mean, not much change? Oh, it changed significantly on the lower side. So let's say when I was in Mumbai, so decent enough salary, 5-figure salary a month coming to my bank account. और जब मैंने एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू किया तो मैं गांव में रहता था, 5,000 का रेंटल था, एंड माय मंथली एक्सपेंडिचर वाज नॉट मोर देन 10 to 15,000. तो आई केप्ट दैट बेंचमार्क. आज भी मैं अपना एक्सपेंडिचर एक लेवल पे ही मेंटेन करके रखता हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो और अगर आपका कंपनी अभी बर्निंग स्टेज पे है या आपका कंपनी जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे है, तो आई वुड कीप इट. मैंने जैसा कल मैं कानपुर से ट्रेन में ही आया. आई माई कंपनी कैन अफोर्ड, माई कंपनी इज गॉट 12 crores इन बैंक अकाउंट कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं आराम से फ्लाइट लेके आ सकता था. बट मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी अभी जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास है, एंड आई एम वेरी लॉयल टू माई इन्वेस्टर्स एंड माई एम्प्लॉयज़. कि अगर मैं भी अगर कानपुर से रात को ट्रेन में आ रहा हूँ 7 घंटे की जर्नी लेके, आई कुड हैव टेकन अ 10,000 रुपीज़ फ्लाइट, राइट. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना यहाँ पे है. मतलब मैं बोलता हूँ व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आपको खाना अच्छा खाना चाहिए. आप ये बोलते हो कि मैं फ्लाइट में जाऊँगा और खाना कुछ भी रद्दी खा लूँगा, तो वो गलत है. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक डेफिनेशन है कि मैं खाने में कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता. बट आई डोंट फ्लैश ब्रांड्स. मैं मतलब ये नहीं है कि मैं यही ब्रांड के शर्ट पहनूंगा, यही ब्रांड का ट्राउज़र पहनूंगा. सो आई डोंट स्पेंड मनी in brands. I don't spend money to show someone that who I am. Rather, I'll conserve that money to put that money in my company's kitty कि यार वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर पाऊँगा. Thank you. Yeah. One last question, please. Hi sir, I am Sneh Patel. I am in a marketing department in ISEC. I just want to know how should we find a perfect investor for our brand? Like, what are the ways? As you said, you met Go in trader there. in Expo. So how should we find a better investor, a better person to guide us, or to get some investment in our entrepreneurship journey, so that it works not as an investor, but which has work as a mentor as well. तो हमने एक राउंड इन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ, बाकी के राउंड में इन्वेस्टर हमको ढूंढ के आए. ठीक है. सो योर इन्वेस्टमेंट साइकिल हैज़ टू बी कि अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप कर रहे हो किसी डोमेन में, तो फाइंड अ पर्सन हु इज़ मेंटरिंग यू इन सिमिलर डोमेन, जो उसमें काम करते हैं. काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलाइड इंडस्ट्री में काम करते हैं. समझ लो कोई आप IT बेस्ड स्टार्टअप में कर रहे हो, तो आप उस प्लेटफॉर्म, उस ग्रुप के लोगों से मिलते रहो. अगर कोई IT कंपनी का यहाँ पे ओनर है जिसके 500-700 एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो बोलता है कि नहीं यार इसका प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसके साथ काम कर रहे हो. इन्वेस्टर आपको फोकस करता है, मतलब देन यू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप. इन्वेस्टमेंट इज़ नेवर वन डे जॉब. हमारा भी जो गोविंद काका के साथ इन्वेस्टमेंट हुआ, इट टूक अस 8 months. भले वो हमको वहाँ मिले, फिर उन्होंने हमको बहुत ऑब्जर्व किया. Who am I as a person? Am I a good person to be working with? और वो तो एक अलग ही चीज़ हो गया एक्सपो वाला. उसके बाद हमने जितने भी राउंड्स किए ना, तो इन्वेस्टर्स हमको ढूंढते हुए आए कि नहीं ठीक है, ये मैं इसी काइंड ऑफ प्रोफाइल में हूँ, ये इंडस्ट्री में हम हैं, और ये इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो लेट मी इन्वेस्ट बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट इंडस्ट्री एंड ही सीइंग दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड अपार्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ही सीज दिस आर गुड फाउंडर्स. आई विल ऑलवेज से कि मेक रिलेशनशिप्स.
विथ द इंडस्ट्री पीपल हु आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. वो आपको आज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा. अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, मेरा नेटवर्किंग है ना, वो मेरा सबसे बड़ा एसेट हो चुका है. आई कीप ऑन नेटवर्किंग पीपल इन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे वहाँ पे. तो कहीं पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मिल के आते हैं और ये फाउंडर का काम चल रहा है, और मैं कहीं पे भी फर्स्ट मीटिंग में नहीं बात करता कि सर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. आई जस्ट शेयर माई जर्नी. इज ही इंटरेस्टेड इन योर जर्नी? मीट अगेन, 2-3 बार मिलते रहो, वो पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होगा. और अगर वो आदमी सामने से इंटरेस्ट दिखाए तो ही पिच करो, वरना वो बैकफायर होगा. ठीक है, कई बार कुछ लोग आपको मिलेंगे एंड दे वुड लाइक टू मीट कैजुअली टू यू, बट उससे आपको शायद रेफरल बिजनेस मिल जाएगा. सी नॉट एवरी पर्सन, मतलब ऐसा ना इन्वेस्टर के पास जैसे पीछे चेस करोगे ना, वो उतना दूर जाएगा. ठीक है, आप जितना अपने तरफ से ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप बनाओगे, 5 लोगों को बोलोगे कि सर ये अपॉर्चुनिटी है आप कीजिए, उसके बाद डू नॉट फॉलो अप. मैं बोलता हूँ डू नॉट फॉलो अप. कुछ लोग बहुत ज़्यादा फॉलो अप करते हैं, वो डेस्परेशन दिखता है. करेक्ट, अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट में दम है तो सामने वाला आदमी आके फॉलो अप करेगा. वन गुड एग्जाम्पल ऑफ शार्क टैंक थिंग आई टेल यू. सो हमारा एपिसोड शूट हुआ था सितंबर 23 में. हमारा एपिसोड एयर हुआ 31 जनवरी 2024 एंड हमारी डील साइन हुई सितंबर 2024. फ्रॉम द डेट व्हेन वी वेर इन एयर और हमको वहाँ पे स्टूडियो में चेक दिया था, टिल द टाइम पीयूष एंड टीम केम टू अहमदाबाद टू विजिट, हमने बहुत पेशेंटली किया था. अगर उनको भी लगता है कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लायक है ना, तो सामने से आएंगे. नेवर अ फॉलो अप कॉल कि वो कब आने वाले हैं, नेवर. राइट, उससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है. वो आए वहाँ पे, ठीक है. बहुत सारे स्टार्टअप डील्स शार्क टैंक में यस होने के बाद 70% क्लोज नहीं होती फॉर XYZ रीजन्स. 30% जो क्लोज होती है उसमें कई बार वैल्यूएशन उसी पे नहीं होता. वी क्लोज एट द सेम वैल्यूएशन एट द टर्म्स एंड विच वर म्यूचुअली वेरी पॉजिटिव. तो हम लोग वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट नेगोशिएशन में 3 महीने निकाल दिए कि हमको ये टर्म्स चाहिए. आई वॉज सेइंग, तो उनकी इन्वेस्टमेंट टीम बोल रही थी कि राज बाकी सारे स्टार्टअप्स तो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं. मैं बोला मैं तो नहीं करता, मेरे को ये टर्म्स पॉसिबल नहीं है. तो आई वॉज वेरी अफर्मेटिव ऑन वॉट आई वॉन्टेड. आई नेवर चेस्ड, बट आई ऑलवेज सेड कि इसमें वैल्यू है. मैं हर बार ये बताता कि देखो, मैं उनकी टीम को, इन्वेस्टमेंट टीम को बताता था कि मेरा ये ऑर्डर आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट मैं कभी ये नहीं पूछूंगा कि पीयूष सर कब मिलने आ रहे हैं. नेवर. राइट, वो एक चीज़ होती है आपके अंदर. तो जिस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर करोगे ना, उसी तरीके से आपकी वैल्यू बनेगी. सो नेवर चेज इन्वेस्टर्स, मेक योर वैल्यू, मेक रिलेशनशिप्स, share information of what you are doing. If someone shows interest, talk about it, but don't become very persuasive. We'll have one last question. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ तबरेज़ अंसारी. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपके माइंड में थॉट आया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, बस बहुत हो गया, अब स्टार्टअप करते हैं, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, अच्छी खासी जॉब थी, वो छोड़ने था, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था और आपने कैसे डिसीजन लिया? So luckily I would say family was quite supportive of that, and मैंने ये भी देखा था कि चलो फैमिली तो एक दो इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि वन इज़ फैमिली सपोर्ट. सो माय फादर ऑलवेज वांटेड टू डू सम बिजनेस ऑफिस काइंड, बट उनका सिचुएशन फाइनेंशियल ये नहीं था कि उनको यही चीज़ों पे उनको रोटी कपड़ा मकान में ही उनका लाइफ निकल गया, एंड एजुकेशन फॉर अस. सो फॉर हिम द प्रायोरिटी वॉज सस्टेनेबिलिटी. उनका, मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया जो है ना, अभी 2 जनरेशन से ट्रांजिशन हो रहा है. हमारे आज़ादी के 75 साल प्लस हो गए. तो पहली जो जनरेशन थी ना, उनको यार ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा होता ना तो भी नहीं कर पाते. जब पेट में आग लगी होती है तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कथा लगती है. तो वो जो फर्स्ट जनरेशन 40 साल की थी, उन्होंने मेहनत की कि आपके सर पे छत है, कपड़ा है, सब है. तो नाउ आवर जनरेशन कैन टेक दैट रिस्क, क्योंकि मुझे उसका तो स्ट्रगल नहीं करना था कि घर है कि नहीं. करेक्ट. सो इन दैट वे फैमिली वॉज सपोर्टिव, बट सेकंड यू हैड टू टेक द रिस्क. वो मैंने कभी वो सैलरी के लिए कभी जॉब में काम ही नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक.
मैं मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि आपको चाहिए कितना महीने में सस्टेनेंस, मेरा सस्टेनेंस इज 25-30 के। आप अगर सैटरडे संडे मूवी देखने जाते हो, आप वीकेंड पे 2-3 हज़ार खर्च कर देते हो, ठीक है। आप उसके अलावा साल भर में 50-60 हज़ार के अच्छे कपड़े ले लेते हो। वॉट इज़ योर सस्टेनेंस? वॉट एवर इज़ योर बैलेंस इज़ जस्ट योर एक्सेसिव लाइफस्टाइल। अगर आप वो एक्सेसिव लाइफस्टाइल को निकाल दोगे तो सस्टेनेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सीधे की सीधी। तो मेरे दिमाग में ये कभी ये नहीं था कि मैंने इतने लाख की नौकरी छोड़ के स्टार्टअप किया। अगर दिमाग में वो रिग्रेट होता ना, तो भी आप कहीं पे वो अटक जाते हो। तो आप हर बार 1 साल 2 साल फेल होने के बाद ये सोचते कि यार मेरा दोस्त है ना, उसने बड़ी गाड़ी ले ली। मुझे काफ़ी बार होता था। मैंने जब से व्हेन आई क्विट माई जॉब, आई क्विट फेसबुक। पहले एक्टिव थे, मैंने 3-4 साल तक, आज भी मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, आई एम हार्डली, बट बिकॉज नाउ आई एम बिजी। पहले लोग ये पोस्ट करते हैं, यार ये दोस्त है ना सिंगापुर घूमने चला गया, ये वहाँ चला गया, ये वो कर रहा है। वो मेरे लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, करेक्ट। तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, जब मैंने जॉब क्विट की तो उनका 3 या 4 साल में पैकेज वुड हैव बिकम 3x और 2x टू वॉट एवर दे वेर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, दे वेर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। और मैं यहाँ पे बैठ के खेत में जाके फिर कैक्टस के पीछे दौड़ रहा था और वहाँ दौड़ रहा था, करेक्ट। तो लाइफ में आपको मज़ा जो बोलते हैं ना, मज़ा का हैप्पीनेस की डेफिनेशन आपकी क्या है, उसके ऊपर आपका पूरा जर्नी जाएगा। मेरे को हैप्पीनेस था कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। तो वो इंटरनल ड्राइव था एंड फैमिली सपोर्ट था, दैट वाज रियली क्रिटिकल। Thank you so much, sir, for your valuable time. We are truly honored to have you here. Before letting you goodbye, we have a small token of appreciation from AMA at ISEC in Ahmedabad. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग। मेरा तो यहाँ से आउटपुट यही रहेगा कि आप में से कोई एक पर्सन भी एटलीस्ट you end up becoming a successful entrepreneur. My time invested is successful. Thank you so much. As we come to the end of today's event, I'll be very thankful to everybody who is present here. Thank you so much.